ضرورت نہیں تو انہیں کسی اور ضرورت مند تک پہنچا دینا۔ ارمان کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے دل نے کہا ان پیسوں سے میری ساری کتابیں آ جائیں گی، لیکن اس نے سوچا پہلے پتہ کرتا ہوں کہ شاید جس نے یہ کتاب بیچی ہے اس کے پیسے غلطی سے اندر رہ گئے ہوں۔ اگلے دن وہ دکان پر گیا اور دکاندار کو لفافہ دکھا دیا۔ دکاندار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ پیسے میرے نہیں، 10 سال پہلے ایک ریٹائرڈ ٹیچر نے ہر سال کچھ کتابوں میں اس طرح پیسے اور پیغام رکھ گیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ علم کی مدد صرف کتاب دے کر نہیں، امید دے کر بھی ہوتی ہے۔ دکاندار نے مسکراتے ہوئے کہا تم نے چاہا تو یہ پیسے چپ چاپ رکھ سکتے تھے، مگر تمہاری ایمانداری نے ثابت کر دیا کہ تم واقعی میں مدد کے حقدار ہو۔ سرگیز آج ہم بات کریں پرانی کتاب کا راز۔ آج کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ علم کی قدر کرنے والا انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور جو دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے بہترین راستہ کھول دیتا ہے۔ ایک چھوٹے سے شہر میں ارمان نام کا ایک 15 سال کا لڑکا رہتا تھا۔ اس کے والد ایک مزدور تھے اور گھر کے حالات بہت مشکل تھے۔ ارمان کا صرف ایک ہی خواب تھا، پڑھ لکھ کر اپنے والد کا سہارا بننا۔ نئے اسکول سیشن کے شروع ہونے پر اسے پتہ چلا کہ اس کی کتابیں بہت مہنگی ہیں۔ گھر میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ نئی کتابیں خریدی جا سکیں۔ ایک دن ارمان پرانی کتابوں کی دکان پر گیا۔ وہاں اسے ایک پرانی سائنس کی کتاب بہت سستی مل گئی۔ دکاندار نے کہا بیٹا اس کتاب کے کچھ صفحے پڑھنے ہیں، اس لیے سستی دے رہا ہوں۔ ارمان خوشی خوشی کتاب گھر لے آیا۔ جب اس نے کتاب کھولی تو اس کے درمیان ایک پرانا لفافہ ملا۔ لفافے میں 10,000 روپے ایک چھوٹی سی پرچی تھی۔ اس پرچی میں لکھا تھا اگر یہ کتاب کسی ضرورت مند اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں ہے تو یہ پیسے اس کی تعلیم کے لیے ہیں، اگر تمہیں ان پیسوں کی ضرورت نہیں تو انہیں کسی اور ضرورت مند تک پہنچا دینا۔ ارمان کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے دل نے کہا ان پیسوں سے میری ساری کتابیں آ جائیں گی، لیکن اس نے سوچا پہلے پتہ کرتا ہوں کہ شاید جس نے یہ کتاب بیچی ہے اس کے پیسے غلطی سے اندر رہ گئے ہوں۔ اگلے دن وہ دکان پر گیا اور دکاندار کو لفافہ دکھا دیا۔ دکاندار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ پیسے میرے نہیں، 10 سال پہلے ایک ریٹائرڈ ٹیچر نے ہر سال کچھ کتابوں میں اس طرح پیسے اور پیغام رکھ گیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ علم کی مدد صرف کتاب دے کر نہیں، امید دے کر بھی ہوتی ہے۔ دکاندار نے مسکراتے ہوئے کہا تم نے چاہا تو یہ پیسے چپ چاپ رکھ سکتے تھے، مگر تمہاری ایمانداری نے ثابت کر دیا کہ تم واقعی میں مدد کے حقدار ہو۔ سرگیز آج ہم بات کریں پرانی کتاب کا راز۔ آج کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ علم کی قدر کرنے والا انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور جو دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے بہترین راستہ کھول دیتا ہے۔ ایک چھوٹے سے شہر میں ارمان نام کا ایک 15 سال کا لڑکا رہتا تھا۔ اس کے والد ایک مزدور تھے اور گھر کے حالات بہت مشکل تھے۔ ارمان کا صرف ایک ہی خواب تھا، پڑھ لکھ کر اپنے والد کا سہارا بننا۔ نئے اسکول سیشن کے شروع ہونے پر اسے پتہ چلا کہ اس کی کتابیں بہت مہنگی ہیں۔ گھر میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ نئی کتابیں خریدی جا سکیں۔ ایک دن ارمان پرانی کتابوں کی دکان پر گیا۔ وہاں اسے ایک پرانی سائنس کی کتاب بہت سستی مل گئی۔ دکاندار نے کہا بیٹا اس کتاب کے کچھ صفحے پڑھنے ہیں، اس لیے سستی دے رہا ہوں۔ ارمان خوشی خوشی کتاب گھر لے آیا۔ جب اس نے کتاب کھولی تو اس کے درمیان ایک پرانا لفافہ ملا۔ لفافے میں 10,000 روپے ایک چھوٹی سی پرچی تھی۔
उस पर्ची में लिखा था, अगर ये किताब किसी ज़रूरतमंद स्टूडेंट के हाथ में है तो ये पैसे उसकी तालीम के लिए हैं। अगर तुम्हें इन पैसों की ज़रूरत नहीं तो इन्हें किसी और ज़रूरतमंद तक पहुंचा देना। अरमान कुछ देर खामोश बैठा रहा। उसके दिल ने कहा, इन पैसों से मेरी सारी किताबें आ जाएंगी। लेकिन उसने सोचा, पहले पता करता हूँ कि शायद जिसने ये किताब बेची है उसके पैसे गलती से अंदर रह गए हों। अगले दिन वो दुकान पर गया और दुकानदार को लिफाफा दिखा दिया। दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, ये पैसे मेरे नहीं। 10 साल पहले एक रिटायर्ड टीचर ने हर साल कुछ किताबों में इस तरह पैसे और पैगाम रख गया था। वो कहता था कि इल्म की मदद सिर्फ किताब देकर नहीं, उम्मीद देकर भी होती है। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने चाहा तो ये पैसे चुपचाप रख सकते थे, मगर तुम्हारी ईमानदारी ने साबित कर दिया कि तुम वाकई में मदद के हकदार हो। सही गाइस, आज हम बात करें पुरानी किताब का राज। आज की कहानी हमें बताती है कि इल्म की कदर करने वाला इंसान कभी नाकाम नहीं होता और जो दूसरे के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए बेहतरीन रास्ता खोल देता है। एक छोटे से शहर में अरमान नाम का एक 15 साल का लड़का रहता था। उसके वालिद एक मजदूर थे और घर के हालात बहुत मुश्किल थे। अरमान का सिर्फ एक ही ख्वाब था, पढ़ लिख कर अपने वालिद का सहारा बनना। नया स्कूल सेशन के शुरू होने पर उसे पता चला कि उसकी किताबें बहुत महंगी हैं। घर में इतने पैसे नहीं थे कि नई किताबें खरीदी जा सके। एक दिन अरमान पुरानी किताबों की दुकान पर गया। वहाँ उसे एक पुरानी साइंस की किताब बहुत सस्ती मिल गई। दुकानदार ने कहा, बेटा, इस किताब के कुछ सफ़े पढ़ने हैं, इसलिए सस्ती दे रहा हूँ। अरमान खुशी किताब घर ले आया। जब उसने किताब खोली तो उसके दरमियान एक पुराना लिफाफा मिला। लिफाफे में 10,000 रुपये एक छोटी सी पर्ची थी। उस पर्ची में लिखा था, अगर ये किताब किसी ज़रूरतमंद स्टूडेंट के हाथ में है तो ये पैसे उसकी तालीम के लिए हैं। अगर तुम्हें इन पैसों की ज़रूरत नहीं तो इन्हें किसी और ज़रूरतमंद तक पहुंचा देना। अरमान कुछ देर खामोश बैठा रहा। उसके दिल ने कहा, इन पैसों से मेरी सारी किताबें आ जाएंगी। लेकिन उसने सोचा, पहले पता करता हूँ कि शायद जिसने ये किताब बेची है उसके पैसे गलती से अंदर रह गए हों। अगले दिन वो दुकान पर गया और दुकानदार को लिफाफा दिखा दिया। दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, ये पैसे मेरे नहीं। 10 साल पहले एक रिटायर्ड टीचर ने हर साल कुछ किताबों में इस तरह पैसे और पैगाम रख गया था। वो कहता था कि इल्म की मदद सिर्फ किताब देकर नहीं, उम्मीद देकर भी होती है। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने चाहा तो ये पैसे चुपचाप रख सकते थे, मगर तुम्हारी ईमानदारी ने साबित कर दिया कि तुम वाकई में मदद के हकदार हो। सही गाइस, आज हम बात करें पुरानी किताब का राज। आज की कहानी हमें बताती है कि इल्म की कदर करने वाला इंसान कभी नाकाम नहीं होता और जो दूसरे के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए बेहतरीन रास्ता खोल देता है। एक छोटे से शहर में अरमान नाम का एक 15 साल का लड़का रहता था। उसके वालिद एक मजदूर थे और घर के हालात बहुत मुश्किल थे। अरमान का सिर्फ एक ही ख्वाब था, पढ़ लिख कर अपने वालिद का सहारा बनना। नया स्कूल सेशन के शुरू होने पर उसे पता चला कि उसकी किताबें बहुत महंगी हैं। घर में इतने पैसे नहीं थे कि नई किताबें खरीदी जा सके। एक दिन अरमान पुरानी किताबों की दुकान पर गया। वहाँ उसे एक पुरानी साइंस की किताब बहुत सस्ती मिल गई। दुकानदार ने कहा, बेटा, इस किताब के कुछ सफ़े पढ़ने हैं, इसलिए सस्ती दे रहा हूँ। अरमान खुशी किताब घर ले आया। जब उसने किताब खोली तो उसके दरमियान एक पुराना लिफाफा मिला। लिफाफे में 10,000 रुपये एक छोटी सी पर्ची थी।
उस पर्ची में लिखा था, अगर ये किताब किसी ज़रूरतमंद स्टूडेंट के हाथ में है तो ये पैसे उसकी तालीम के लिए हैं। अगर तुम्हें इन पैसों की ज़रूरत नहीं तो इन्हें किसी और ज़रूरतमंद तक पहुंचा देना। अरमान कुछ देर खामोश बैठा रहा। उसके दिल ने कहा, इन पैसों से मेरी सारी किताबें आ जाएंगी। लेकिन उसने सोचा, पहले पता करता हूँ कि शायद जिसने ये किताब बेची है उसके पैसे गलती से अंदर रह गए हों। अगले दिन वो दुकान पर गया और दुकानदार को लिफाफा दिखा दिया। दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, ये पैसे मेरे नहीं। 10 साल पहले एक रिटायर्ड टीचर ने हर साल कुछ किताबों में इस तरह पैसे और पैगाम रख गया था। वो कहता था कि इल्म की मदद सिर्फ किताब देकर नहीं, उम्मीद देकर भी होती है। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने चाहा तो ये पैसे चुपचाप रख सकते थे, मगर तुम्हारी ईमानदारी ने साबित कर दिया कि तुम वाकई में मदद के हकदार हो। गाइस, आज हम बात करें पुरानी किताब का राज। आज की कहानी हमें बताती है कि इल्म की कदर करने वाला इंसान कभी नाकाम नहीं होता और जो दूसरे के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए बेहतरीन रास्ता खोल देता है। एक छोटे से शहर में अरमान नाम का एक 15 साल का लड़का रहता था। उसके वालिद एक मजदूर थे और घर के हालात बहुत मुश्किल थे। अरमान का सिर्फ एक ही ख्वाब था, पढ़ लिख कर अपने वालिद का सहारा बनना। नया स्कूल सेशन के शुरू होने पर उसे पता चला कि उसकी किताबें बहुत महंगी हैं। घर में इतने पैसे नहीं थे कि नई किताबें खरीदी जा सके। एक दिन अरमान पुरानी किताबों की दुकान पर गया। वहाँ उसे एक पुरानी साइंस की किताब बहुत सस्ती मिल गई। दुकानदार ने कहा, बेटा, इस किताब के कुछ सफ़े पढ़ने हैं, इसलिए सस्ती दे रहा हूँ। अरमान खुशी खुशी किताब घर ले आया। जब उसने किताब खोली तो उसके दरमियान एक पुराना लिफाफा मिला। लिफाफे में 10,000 रुपए एक छोटी सी पर्ची थी। उस पर्ची में लिखा था, अगर ये किताब किसी ज़रूरतमंद स्टूडेंट के हाथ में है तो ये पैसे उसकी तालीम के लिए हैं। अगर तुम्हें इन पैसों की ज़रूरत नहीं तो इन्हें किसी और ज़रूरतमंद तक पहुंचा देना। अरमान कुछ देर खामोश बैठा रहा। उसके दिल ने कहा, इन पैसों से मेरी सारी किताबें आ जाएंगी। लेकिन उसने सोचा, पहले पता करता हूँ कि शायद जिसने ये किताब बेची है उसके पैसे गलती से अंदर रह गए हों। अगले दिन वो दुकान पर गया और दुकानदार को लिफाफा दिखा दिया। दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, ये पैसे मेरे नहीं। 10 साल पहले एक रिटायर्ड टीचर ने हर साल कुछ किताबों में इस तरह पैसे और पैगाम रख गया था। वो कहता था कि इल्म की मदद सिर्फ किताब देकर नहीं, उम्मीद देकर भी होती है। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने चाहा तो ये पैसे चुपचाप रख सकते थे, मगर तुम्हारी ईमानदारी ने साबित कर दिया कि तुम वाकई में मदद के हकदार हो। गाइस, आज हम बात करें पुरानी किताब का राज। आज की कहानी हमें बताती है कि इल्म की कदर करने वाला इंसान कभी नाकाम नहीं होता और जो दूसरे के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए बेहतरीन रास्ता खोल देता है। एक छोटे से शहर में अरमान नाम का एक 15 साल का लड़का रहता था। उसके वालिद एक मजदूर थे और घर के हालात बहुत मुश्किल थे। अरमान का सिर्फ एक ही ख्वाब था, पढ़ लिख कर अपने वालिद का सहारा बनना। नया स्कूल सेशन के शुरू होने पर उसे पता चला कि उसकी किताबें बहुत महंगी हैं। घर में इतने पैसे नहीं थे कि नई किताबें खरीदी जा सके। एक दिन अरमान पुरानी किताबों की दुकान पर गया। वहाँ उसे एक पुरानी साइंस की किताब बहुत सस्ती मिल गई। दुकानदार ने कहा, बेटा, इस किताब के कुछ सफ़े पढ़ने हैं, इसलिए सस्ती दे रहा हूँ। अरमान खुशी खुशी किताब घर ले आया। जब उसने किताब खोली तो उसके दरमियान एक पुराना लिफाफा मिला। लिफाफे में 10,000 रुपए एक छोटी सी पर्ची थी।
उस पर्ची में लिखा था, अगर ये किताब किसी ज़रूरतमंद स्टूडेंट के हाथ में है तो ये पैसे उसकी तालीम के लिए हैं। अगर तुम्हें इन पैसों की ज़रूरत नहीं तो इन्हें किसी और ज़रूरतमंद तक पहुंचा देना। अरमान कुछ देर खामोश बैठा रहा। उसके दिल ने कहा, इन पैसों से मेरी सारी किताबें आ जाएंगी। लेकिन उसने सोचा, पहले पता करता हूँ कि शायद जिसने ये किताब बेची है उसके पैसे गलती से अंदर रह गए हों। अगले दिन वो दुकान पर गया और दुकानदार को लिफाफा दिखा दिया। दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, ये पैसे मेरे नहीं। 10 साल पहले एक रिटायर्ड टीचर ने हर साल कुछ किताबों में इस तरह पैसे और पैगाम रख गया था। वो कहता था कि इल्म की मदद सिर्फ किताब देकर नहीं, उम्मीद देकर भी होती है। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने चाहा तो ये पैसे चुपचाप रख सकते थे, मगर तुम्हारी ईमानदारी ने साबित कर दिया कि तुम वाकई में मदद के हकदार हो। सही गाइस, आज हम बात करें पुरानी किताब का राज। आज की कहानी हमें बताती है कि इल्म की कदर करने वाला इंसान कभी नाकाम नहीं होता और जो दूसरे के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए बेहतरीन रास्ता खोल देता है। एक छोटे से शहर में अरमान नाम का एक 15 साल का लड़का रहता था। उसके वालिद एक मजदूर थे और घर के हालात बहुत मुश्किल थे। अरमान का सिर्फ एक ही ख्वाब था, पढ़ लिख कर अपने वालिद का सहारा बनना। नया स्कूल सेशन के शुरू होने पर उसे पता चला कि उसकी किताबें बहुत महंगी हैं। घर में इतने पैसे नहीं थे कि नई किताबें खरीदी जा सके। एक दिन अरमान पुरानी किताबों की दुकान पर गया। वहाँ उसे एक पुरानी साइंस की किताब बहुत सस्ती मिल गई। दुकानदार ने कहा, बेटा, इस किताब के कुछ सफ़े पढ़ने हैं, इसलिए सस्ती दे रहा हूँ। अरमान खुशी किताब घर ले आया। जब उसने किताब खोली तो उसके दरमियान एक पुराना लिफाफा मिला। लिफाफे में 10,000 रुपये एक छोटी सी पर्ची थी। उस पर्ची में लिखा था, अगर ये किताब किसी ज़रूरतमंद स्टूडेंट के हाथ में है तो ये पैसे उसकी तालीम के लिए हैं। अगर तुम्हें इन पैसों की ज़रूरत नहीं तो इन्हें किसी और ज़रूरतमंद तक पहुंचा देना। अरमान कुछ देर खामोश बैठा रहा। उसके दिल ने कहा, इन पैसों से मेरी सारी किताबें आ जाएंगी। लेकिन उसने सोचा, पहले पता करता हूँ कि शायद जिसने ये किताब बेची है उसके पैसे गलती से अंदर रह गए हों। अगले दिन वो दुकान पर गया और दुकानदार को लिफाफा दिखा दिया। दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, ये पैसे मेरे नहीं। 10 साल पहले एक रिटायर्ड टीचर ने हर साल कुछ किताबों में इस तरह पैसे और पैगाम रख गया था। वो कहता था कि इल्म की मदद सिर्फ किताब देकर नहीं, उम्मीद देकर भी होती है। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने चाहा तो ये पैसे चुपचाप रख सकते थे, मगर तुम्हारी ईमानदारी ने साबित कर दिया कि तुम वाकई में मदद के हकदार हो। सही गाइस, आज हम बात करें पुरानी किताब का राज। आज की कहानी हमें बताती है कि इल्म की कदर करने वाला इंसान कभी नाकाम नहीं होता और जो दूसरे के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए बेहतरीन रास्ता खोल देता है। एक छोटे से शहर में अरमान नाम का एक 15 साल का लड़का रहता था। उसके वालिद एक मजदूर थे और घर के हालात बहुत मुश्किल थे। अरमान का सिर्फ एक ही ख्वाब था, पढ़ लिख कर अपने वालिद का सहारा बनना। नया स्कूल सेशन के शुरू होने पर उसे पता चला कि उसकी किताबें बहुत महंगी हैं। घर में इतने पैसे नहीं थे कि नई किताबें खरीदी जा सके। एक दिन अरमान पुरानी किताबों की दुकान पर गया। वहाँ उसे एक पुरानी साइंस की किताब बहुत सस्ती मिल गई। दुकानदार ने कहा, बेटा, इस किताब के कुछ सफ़े पढ़ने हैं, इसलिए सस्ती दे रहा हूँ। अरमान खुशी किताब घर ले आया। जब उसने किताब खोली तो उसके दरमियान एक पुराना लिफाफा मिला। लिफाफे में 10,000 रुपये एक छोटी सी पर्ची थी।
उस पर्ची में लिखा था, अगर ये किताब किसी ज़रूरतमंद स्टूडेंट के हाथ में है तो ये पैसे उसकी तालीम के लिए हैं। अगर तुम्हें इन पैसों की ज़रूरत नहीं तो इन्हें किसी और ज़रूरतमंद तक पहुंचा देना। अरमान कुछ देर खामोश बैठा रहा। उसके दिल ने कहा, इन पैसों से मेरी सारी किताबें आ जाएंगी। लेकिन उसने सोचा, पहले पता करता हूँ कि शायद जिसने ये किताब बेची है उसके पैसे गलती से अंदर रह गए हों। अगले दिन वो दुकान पर गया और दुकानदार को लिफाफा दिखा दिया। दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, ये पैसे मेरे नहीं। 10 साल पहले एक रिटायर्ड टीचर ने हर साल कुछ किताबों में इस तरह पैसे और पैगाम रख गया था। वो कहता था कि इल्म की मदद सिर्फ किताब देकर नहीं, उम्मीद देकर भी होती है। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने चाहा तो ये पैसे चुपचाप रख सकते थे, मगर तुम्हारी ईमानदारी ने साबित कर दिया कि तुम वाकई में मदद के हकदार हो। सही गाइस, आज हम बात करें पुरानी किताब का राज। आज की कहानी हमें बताती है कि इल्म की कदर करने वाला इंसान कभी नाकाम नहीं होता और जो दूसरे के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए बेहतरीन रास्ता खोल देता है। एक छोटे से शहर में अरमान नाम का एक 15 साल का लड़का रहता था। उसके वालिद एक मजदूर थे और घर के हालात बहुत मुश्किल थे। अरमान का सिर्फ एक ही ख्वाब था, पढ़ लिख कर अपने वालिद का सहारा बनना। नया स्कूल सेशन के शुरू होने पर उसे पता चला कि उसकी किताबें बहुत महंगी हैं। घर में इतने पैसे नहीं थे कि नई किताबें खरीदी जा सके। एक दिन अरमान पुरानी किताबों की दुकान पर गया। वहाँ उसे एक पुरानी साइंस की किताब बहुत सस्ती मिल गई। दुकानदार ने कहा, बेटा, इस किताब के कुछ सफ़े पढ़ने हैं, इसलिए सस्ती दे रहा हूँ। अरमान खुशी खुशी किताब घर ले आया। जब उसने किताब खोली तो उसके दरमियान एक पुराना लिफाफा मिला। लिफाफे में 10,000 रुपए एक छोटी सी पर्ची थी। उस पर्ची में लिखा था, अगर ये किताब किसी ज़रूरतमंद स्टूडेंट के हाथ में है तो ये पैसे उसकी तालीम के लिए हैं। अगर तुम्हें इन पैसों की ज़रूरत नहीं तो इन्हें किसी और ज़रूरतमंद तक पहुंचा देना। अरमान कुछ देर खामोश बैठा रहा। उसके दिल ने कहा, इन पैसों से मेरी सारी किताबें आ जाएंगी। लेकिन उसने सोचा, पहले पता करता हूँ कि शायद जिसने ये किताब बेची है उसके पैसे गलती से अंदर रह गए हों। अगले दिन वो दुकान पर गया और दुकानदार को लिफाफा दिखा दिया। दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, ये पैसे मेरे नहीं। 10 साल पहले एक रिटायर्ड टीचर ने हर साल कुछ किताबों में इस तरह पैसे और पैगाम रख गया था। वो कहता था कि इल्म की मदद सिर्फ किताब देकर नहीं, उम्मीद देकर भी होती है। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने चाहा तो ये पैसे चुपचाप रख सकते थे, मगर तुम्हारी ईमानदारी ने साबित कर दिया कि तुम वाकई में मदद के हकदार हो। सही गाइस, आज हम बात करें पुरानी किताब का राज। आज की कहानी हमें बताती है कि इल्म की कदर करने वाला इंसान कभी नाकाम नहीं होता और जो दूसरे के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए बेहतरीन रास्ता खोल देता है। एक छोटे से शहर में अरमान नाम का एक 15 साल का लड़का रहता था। उसके वालिद एक मजदूर थे और घर के हालात बहुत मुश्किल थे। अरमान का सिर्फ एक ही ख्वाब था, पढ़ लिख कर अपने वालिद का सहारा बनना। नया स्कूल सेशन के शुरू होने पर उसे पता चला कि उसकी किताबें बहुत महंगी हैं। घर में इतने पैसे नहीं थे कि नई किताबें खरीदी जा सके। एक दिन अरमान पुरानी किताबों की दुकान पर गया। वहाँ उसे एक पुरानी साइंस की किताब बहुत सस्ती मिल गई। दुकानदार ने कहा, बेटा, इस किताब के कुछ सफ़े पढ़ने हैं, इसलिए सस्ती दे रहा हूँ। अरमान खुशी खुशी किताब घर ले आया। जब उसने किताब खोली तो उसके दरमियान एक पुराना लिफाफा मिला। लिफाफे में 10,000 रुपए एक छोटी सी पर्ची थी।
اس پرچی میں لکھا تھا اگر یہ کتاب کسی ضرورت مند اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں ہے تو یہ پیسے اس کی تعلیم کے لیے ہیں۔ اگر تمہیں ان پیسوں کی ضرورت نہیں تو انہیں کسی اور ضرورت مند تک پہنچا دینا۔ ارمان کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے دل نے کہا ان پیسوں سے میری ساری کتابیں آ جائیں گی، لیکن اس نے سوچا پہلے پتہ